Hello and welcome you all to Excellent Education. Here I am Vishnu Kumar Trivedi is welcoming you all to our teaching platform. कैसे हैं आप सभी? Hope you all are doing good in your education, in your studies. So after a long time, we are meeting now. So there are some important works which I have to finish. Or so from this lecture, we will not delay at any cost. I am repeating, with this lecture, we will not delay at any cost. We will not be absent. Okay. So, from where we have left, okay, we have left from motion. All right. So, from motion, that is the seventh lecture of mine. Okay. So, we have studied what are the types of motion. Na? Okay. Hello. जय हिंद प्रज्ञा, जय हिंद सुमित, गुड इवनिंग लतिका, गुड इवनिंग टू ऑल। जितने भी स्टूडेंट हमें यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा कि व्हाट इज मोशन, डेफिनेशन क्या है, एंड ऑन व्हाट इज द नेचर, एंड देयर आर मैनी मोशन which we are seeing in the daily life. We have already covered all these sections. We have started those students who have not joined us and they are joining now. I am telling them, beta, when we have started, we have taken first lecture of measurement and what are the systems of measurement. Okay. After that, just a second. Just a second. I am checking that the audio is working or not. Okay, it's working. So I am saying that we have started from measurement and what are the types, what are the system of measurement, and what are the qualities, and all the important topics of measurement will be considered, and sorry, would be considered, okay, in the first lecture. So who have not watched that lecture, they may go and click on the recorded session, so they may find that lecture. That was the important lecture. I have deeply discussed what are the measurement measuring systems and what are the systems of measurement SI system. Okay, so you have to go from the recorded section. Okay, and in the second we have discussed the motion, and in the third we have discussed what are the types of motion. So there are many topics we have discussed. In today's topic, beta, good evening, Sumit. Good evening to all. So in these topics, we have discussed that what is the motion, measurement, and all these topics which have previously discussed. You may go and watch it. So today we are starting our new lecture, our new topic, that is called force. Okay. So
Force and the types of Newton's law. Okay, so Isaac Newton, which is very great scientist, have discussed have stated three laws of motion. We will discuss them in deep and in detail. Okay, so I am uploading my PDF. Till then, those students who have not joined us, we will wait for 2 or 3 minutes. Then we will start. Okay. Just a second, beta. I am uploading. File is missing somewhere else. Okay. It's taking time here. Just a minute. Please wait with me. Maybe in the Gmail or it is somewhere else. So I think next second. So we are back. Okay. It may be lost. Just a second. Where it is here? Okay. So I think all of you have, all of you are watching. Okay. So we are going to discuss some of the important
topics of force and the laws of motion. Okay, just a second. So this is the topic we are going to discuss: force and laws of motion. Okay. So what are force? What do you mean by force? The definition of force and laws of motion we will discuss in this lecture. Okay. In this lecture, we will discuss that what are force and what force is. Okay. So before going to deliver this lecture, हम लोग ये समझेंगे कि फोर्स क्या है. Okay. So I think this section is creating some. Okay. So if this will move, I do not think how it is moving here. Hmm. So I will describe everything and you will find this PDF in the study material section. Okay. So force. Before going to deliver that what is force, we have to understand some of the following phenomena. जब भी आप कहीं पर आसपास अपने देखते हैं कि कुछ चीजें अपने आप जैसे व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, ओके, एंड लोग हैं आसपास, कुछ भी है, तो वो जो गति करता है, वो वह गति किस कारण से होती है? समझ में आया? देयर इज समथिंग विच इज हेल्पिंग देम टू मूव. ओके. अगर कुछ भी है आपके वातावरण में, आपके सोसाइटी में, आपके इन्वायरमेंट में, अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो गतिमान है या जो स्थिर अवस्था में है, ओके, सो वहाँ उनके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है जिसको हम डिफाइन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे बड़े तल्लीनता के साथ, एक एक चीज़ को समझेंगे. ओके. सो फोर्स, बेटा फोर्स एक ऐसा कारण है, एक ऐसा जरिया है जो चीजों को गतिमान करने के लिए सहायक होता है. ठीक. तो फोर्स क्या है या बल क्या है? जो लोग हिंदी के बच्चे हैं वो समझिए कि बल क्या है. हम कह सकते हैं फोर्स कह लें या इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, बल क्या है, बल. ठीक. तो बल बेटा एक, फोर्स क्या है? फोर्स में बी डिफाइंड एज a push or a pull applied on a body or a mass in order to change its direction, shape, and size or a position. Okay. So फोर्स एक ऐसा माध्यम है, फोर्स परिभाषित किया जा सकता है एक ऐसे खिंचाव, एक ऐसे बल के द्वारा जो चीजों को, जो किसी भी पिंड को मूव कराने में, उसकी साइज में चेंज करने के लिए या उसकी पोजीशन में. जैसा कि मैंने बोला कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करती है. व्हाट इज मोशन? मोशन इज द चेंजमेंट इन द पोजीशन. सो व्हेन देयर इज a modification in the position, there will be a force applied on that body. Force may be defined as a push or pull which creates a pressure on the body and body will move. So
In the second section, we have some of the forces. Just a second. This is not okay. So फोर्स एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो चीजों को गतिमान करने के लिए सहायक होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस आर, आपने अपने आसपास कई सारी चीजें देखी होंगी। So in the daily life, we have experienced some of the forces around us, that is attraction to the body from the earth. Okay. Pressure on, किसी वाहन से जाते हैं तो बीच बीच में जब हम ब्रेक लगाते हैं वहां पर भी हम व्हील्स पर फोर्स क्रिएट कर रहे होते हैं अपने व्हीकल को रोकने के लिए। समझ आया? अट्रैक्शन टुवर्ड द बॉडी फ्रॉम द अर्थ मीन्स gravitation force. Those students who have experienced this force, actually कोई भी चीज हो वो अर्थ पर आकर अर्थ के द्वारा खींची जाती है, बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth to the body. Okay, so these are all what forces. समझ आया? चुंबक देखिए सबने, जब दो चुंबक आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वो चिपक जाती हैं। देयर इज ऑल्सो अ फोर्स विच इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आया? जब भी हम तैर रहे होते हैं किसी तालाब में, किसी नदी में, तो वहां पर वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा क्या करते हैं, पानी अपने बहाव में हमें बहा ले जाता है, क्योंकि देयर इज force created by water. So all these phenomena are related with force. समझ आया? In all these cases, or like any other cases, these all should be considered as force applied by the nature. प्रकृति में ऐसी कई परिघटनाएं होती हैं जो फोर्स से जुड़ी हुई हैं। समझ आया? ग्रेविटेशन फोर्स हो, इलेक्ट्रिसिटी इन वायर, आप देखते हैं आपके घर में जो बिजली के तार हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो ऑल दीज फिनोमेना आर रिलेटेड विद फोर्स। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। ओके, तो अब बात आती है बेटा कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। वी मे categorize the forces into the two ways. How many? We will categorize into the two ways. How many? Two. First is balance forces beta, and second one is unbalanced forces. What are balance forces and what are unbalanced forces? अभी समझेंगे इनको क्या होते हैं ये, कि जब भी एक ऐसा सिस्टम मान लें हम कि वहां पर कई सारे फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो जब इन फोर्सेस का उस सिस्टम पर शून्य प्रभाव होगा, हिंदी वाले बच्चे समझें, तो ऐसे फोर्स बैलेंस फोर्सेस कहलाए जाते हैं। ठीक, फोर्सेस दैट आर इक्वल इन साइज, ओके, बट अपोजिट इन डायरेक्शन
आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। क्या मतलब हुआ इसका? मीन्स इन मैग्नीट्यूड व्हेन द फोर्सेस आर इक्वल टू वन अनदर, देन, और वी मे से, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर एक कोई फोर्स है और दूसरा अगर फोर्स है वो अपोजिट है, मीन्स अगर यहाँ पर मान लें हम कि प्लस एफ है और यहाँ पर माइनस एफ है, कोई दूसरा एक फोर्स है वो माइनस है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा सिस्टम कैसा होगा? जीरो होगा। समझ आया? सिस्टम में जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस है। ठीक, पूरा हमारा जो कोई सिस्टम है वो कैसा है? बैलेंस है। ठीक, अब इस केस में एक समझने वाली बात ये है बेटा कि इस केस में आपका जो बॉडी होगा या कोई मास होगा वो गति नहीं करेगा। समझ रहे हैं? देयर विल नॉट बी एनी मोशन, देयर विल नॉट बी एनी मोशन, क्योंकि वहां पर सारे फोर्सेस बराबर हैं। ठीक, F1, we can mathematically prove that when, just a second, this is not moving. Hmm? Just a second. एक सेकेंड, इसको लोड हो जाने दीजिए पूरा पहले। There should be a network issue. Okay, 2 सेकंड रुकिए। नेटवर्क को पता नहीं क्या हो गया आज। सो वी आर ऑन द फोर्थ स्लाइड बेटा ना। सो यहाँ पर मैं कह रहा था, अगर F1, मान लीजिए कि 4 फोर्सेस हैं किसी भी सिस्टम में, और F1 प्लस F2 प्लस F3, ओके, प्लस F4, if it is equals to 0, then whole system will be balanced. Okay, so there will not be any change in the position in the motion of the body. ठीक, अब दूसरा कैटेगरी क्या है? अनबैलेंस फोर्सेस। Forces that are equal in magnitude are called balanced force, but forces that are unequal in magnitude, okay, something like that, F1 is not equals to F2 or F2 is not equals to F3. So if these are unequal in magnitude, the system of forces, there is an unbalance. Okay, so जब बैलेंस नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? बॉडी मूव करेगी। समझ आए? अगर यहाँ पर हमारा F1 और F2 और F3 बराबर नहीं है, एक दूसरे के नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा? देयर इज एन अनबैलेंस। ओके,
राइटिंग शुड नॉट बी मीन्स समझ नहीं आ रहा होगा तो आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फोर्सेस दैट आर इक्वल, ओके, forces that are equal are balanced forces, and forces that are not equal in magnitude are called unbalanced forces। समझ आया? यहाँ पर जब अनबैलेंस फोर्स होगा तो उस केस में बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। ठीक। अब आती है बात इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, ओके, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको जो अपने आप में किसी भी मीन्स चेंजमेंट का, किसी भी बदलाव का विरोध करे, वो क्या कहलाएगा? इनर्शिया कहलाएगा। समझ आया? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इफ अ बॉडी अपोज द मॉडिफिकेशन ऑफ itself, this property will be called as inertia। Okay, so there are many types of inertia. There are two types of inertia in the means we can say in academic class we have learned two types of inertia. The one is inertia of rest, and the another is inertia of motion। यही दो पढ़े होंगे ना आप लोगों ने? But there is any third special kind of inertia which is called inertia of direction। Okay, we will discuss this kind in very detail. Okay, no problem in that. Please be regular, Mr. Ankit। Okay, so examples of inertia and its explanation। कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके तौर पे, जिनके जरिए हम समझेंगे कि इनर्शिया जो तीन प्रकार के हैं बेटा, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। द डायट ऑफ ब्लैंकेट, सभी ने कंबल देखा है। अब तो सर्दियां भी आ गई हैं तो कंबल ओढ़ते हैं। जब कंबल गंदा हो जाता है तो आपके घर वाले या आप खुद उस कंबल की पिटाई कर देते हैं। ओके, सो पिटाई करने पर उस कंबल को चोट नहीं लगती। ओके, होता क्या है कि कंबल की जितनी भी डस्ट होती है, all the particle of dust will be removed from the blanket। Okay, so there is a process, there is a scientific law which is called inertia of rest। The dirt of blanket falls on ground, beta, when hitting with a stick, it happens because the dust particles are in rest। समझ नहीं आया होगा? चलिए, होता क्या है जब हम डंडे से किसी भी कंबल को पीटते हैं, किसी भी कंबल पर डंडे से वार करते हैं, तो उसमें मौजूद जितने भी धूल के कण होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल या धूल के कण रेस्ट पोजीशन में होते हैं, विरामावस्था में होते हैं, और जब हम उस पर वार करते हैं किसी भी स्टिक से, तो होता क्या है, वो अपने आप जमीन पर गिर जाती है। तो ये इसके पीछे क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक। दूसरा काइंड है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एग्जाम्पल देखा होगा आपने, जब भी बस में किसी भी व्हीकल में जब आप सफर करते हैं तो वहां पर बस के ड्राइवर जब ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठे यात्री अचानक से ऊपर की ओर
ऊपर का जो हिस्सा है उनके शरीर का ऊपर का हिस्सा, वो क्या करते हैं, वो अचानक से बाहर की ओर, मीन्स अपने आगे झुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सीट पे बैठे होते हैं तो नीचे का धड़, हमारा शरीर का नीचे का धड़ रेस्ट में होता है, बट ऊपर का धड़, मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन मोशन. So when the driver applies the brake, then upper part of the body will move in the forward direction. So why it is happening? Because there is law of inertia of motion. Okay. So हमारा बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है वो मोशन में होता है, इस वजह से वो ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकता है। ठीक। तीसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब भी घुमावदार सड़कें होती हैं, सबने देखी होंगी, कोई ऐसे हाईवे, कोई ऐसा ब्रिज जहां पर एकदम से घुमाव हो, ठीक, वहां पर जब गाड़ी ले जाते हैं या आप कोई भी व्हीकल से जब जाते हैं उस एरिया में, तो वहां पर जो गाड़ी होती है एकदम मुड़ जाती है, ठीक, एकदम घूमती है, क्योंकि घुमावदार सड़कें हैं। ऐसी स्थिति में होता ये है बेटा कि अंदर बैठे सभी यात्री बाहर की ओर फिक जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हीकल एक डायरेक्शन में बैलेंस बना सके। ठीक, व्हीकल जो है उसका डायरेक्शन का बैलेंस ना बिगड़े, समझ रहे हैं। ऑन द बैंकिंग ट्रैक, बैंकिंग ट्रैक क्या होता है, घुमावदार, ठीक, घुमावदार सड़कें, और यहाँ पर राउंड कर्व, यानी कि पूरा एक गोल चक्कर, ठीक। यहाँ पर ये दोनों केसेस में जब हम व्हीकल चलाते हैं तो वहां पर हमारा inertia of डायरेक्शन काम करता है। On the banking tracks, when a vehicle moves, person sitting in it falls outward or in opposite direction to maintain the motion of vehicle or the direction of the motion. Okay. अगर ऐसा नहीं होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, समझ रहे हैं। ये होता कैसे है, ये जनरली हिली एरियाज में जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें ये केसेस, उनमें ये घटना देखने को मिलती है। जब भी पहाड़ियों से कोई व्हीकल गुजरता है तो उसमें बैठे यात्री गिरते हैं या बाहर की ओर झुक जाते हैं। ठीक, अब बात आती है लॉज ऑफ मोशन। ठीक, लॉज ऑफ मोशन आर प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। ओके, आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी बुक, उनकी एक बुक थी बेटा जिसका नाम था मैथमेटिका प्रिंसिपिया। ओके, इन्होंने मैथमेटिका प्रिंसिपिया नामक एक बुक में तीन लॉ का, तीन तीन सिद्धांतों का वर्णन किया था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन is proposed, are proposed in Isaac in Mathematica Principia in 1699. ओके, 1699 1699 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने तीनों सिद्धांतों का वर्णन किया, और कहीं कहीं किसी 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 भी बुक में कहीं कहीं पर आपको
इस डेट को 1800 या 1885 लिखा हुआ मिलेगा बेटा। ठीक। सो ऑल books are different and the matters are different. So वहां पर उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन का डिटेलली डिस्कस किया। ठीक। उस बुक की एक कॉपी मैंने यहाँ पर लगाई है, आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए। ये इसका नाम है बेटा फिलोसोफिया प्रिंसिपिया, फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। सो इट्स कॉल्ड प्रिंसिपिया और मैथमेटिका प्रिंसिपिया, कैसे भी बोल सकते हैं। ये लिखी गई थी किनके द्वारा? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक। डेट याद रखिएगा, डेट कभी कभी पूछ लिया जाता है। डेट 1699। ये एक नीट का क्वेश्चन, नेट का, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, जो कि यूजीसी नेट में आया हुआ है कि सर आइजैक न्यूटन ने अपने बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में न्यूटन्स लॉ कब डिस्कस किए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एनी ऑफ द कंसेप्ट। ओके, समझ में आ रहा है इंग्लिश? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। सो सर आइजैक न्यूटन ने अपने पहले नियम में क्या कहा बेटा? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ अ बॉडी इज इन मोशन, ओके, अगर कोई बॉडी गति कर रही है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी। ठीक। इफ अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ओके। इसका दूसरा केस ये है बेटा, इफ अ बॉडी इज इन if a body is not in motion or in the rest position। ठीक। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या चल नहीं रही है तो वो तब तक नहीं चलेगी जब तक हम कोई बाह्य बल उस पर आरोपित ना करते। हिंदी वाले बच्चे समझिए, जब तक हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं तब तक उस बॉडी के मोशन में, ठीक, उस बॉडी के स्टेट में, स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, whenever we apply an external force on the body will move। Okay, so in order to change the state of the motion, in other word we can say beta, in order to change the state of motion we have to apply some external force on the body or a mass। समझ आया? Whether when a body is in rest or in motion will remain at rest or in motion as no external force applied on it। किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके में, किसी भी लिहाज में हम बोल सकते हैं, वर्णन करने का अपना अपना ढंग है। ठीक। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, हमने पढ़ा था अभी इनर्शिया, तो फर्स्ट लॉ जो न्यूटन के द्वारा दिया गया उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक। हिंदी वाले बच्चे समझिए, इसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, इसको हम बोलते हैं क्या? जड़त्व का नियम। ठीक। जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। बिफोर we proceed on the second law, there is an example of the detailment of first law।
ठीक, यहाँ पर दिखाया गया है कि फुटबॉल है तो वो रेस्ट में है। ठीक, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बेटा, it will stay at rest unless a net force acting on it। ठीक, इसमें बताया गया है कि जब तक वो फुटबॉल नहीं चलेगी, जब तक हम उस पर अपने फुट से किक नहीं करेंगे, मीन्स वी विल नॉट गिव a force to it, we will not apply a force on it। ठीक, यहाँ पर अगर हम बाह्य को, ठीक, अगर हम बाह्य को हटा दें तो वह वस्तु जिस भी अवस्था में हो गई बेटा, वो उसी अवस्था में बनी रहेगी। कहने का मैं मतलब ये समझाना चाहता हूँ। ठीक, अगर हम यहाँ पे एक चीज और समझने की है, अगर हम हवा के बाह्य बल को हटा दें, ठीक, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पर विंड भी, यहाँ पर हम वैक्यूम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, निर्वात को ले रहे हैं। ठीक, we are considering that the object or a mass is in vacuum, there will not be any air, any wind। okay, so अगर वो भी तो कुछ ना कुछ लगा रही होगी बेटा, हवा जो है, समझ नहीं पाए होंगे। चलिए, हवा जो है हमारे वायुमंडल में मौजूद होती है, हवा भी तो हमारी इस बॉल पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी, समझ पाए। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, सेकंड कंडीशन क्या बताई थी कि अगर कोई बॉडी या कोई मास, मान लीजिए ये फुटबॉल ही है, अगर ये घूम रही है, चल रही है ग्राउंड पे, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ये बॉडी क्या है, ये फुटबॉल क्या है, मोशन में है, गतिमान अवस्था में है, तो ये तब तक गति करेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगाया जाता। जैसे कि आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो वहां पर कैच लेने के लिए किसी खिलाड़ी को अपने हाथ से उस बॉल को रोकना पड़ता है, वहां पे हाथों के द्वारा वो बॉल पर बल लगाता है तो बॉल रुक जाती है। यहाँ पर उसी केस में अगर हम इस पे बल लगाएंगे तो ये रुक जाएगी, नहीं तो ये अपनी ही गति में गति करती रहेगी। ठीक, विद द सेम मोशन, विद द सेम स्पीड। ओके, समझ आया है, होप कि समझ पाए होंगे। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ मास, जो हम लोग फोर्स पढ़ रहे थे शुरू में, वो क्या है, वो दो चीजों का गुणनफल है बेटा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट मास एंड एक्सीलरेशन। क्या क्या है, मास मीन्स बोल सकते हैं परिणाम, परिमाण। ओके, वो दो चीजों का है, परिमाण का है। ओके, और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन माने त्वरण, त्वरण। ये दो चीजों का जब गुणनफल करते हैं या गुणा करते हैं, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, फोर्स। ठीक, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, m इंटू ए। यहाँ पर m है मास ऑफ द बॉडी एंड a है एक्सीलरेशन या त्वरण। ठीक, इसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ मोशन। डेफिनेशन ऑफ फोर्स होना चाहिए था बेटा यहाँ, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक,
force may be defined as F, force may be denoted as F. सो यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स क्या है? फोर्स दो चीजों का गुणनफल है बेटा। पहला बॉडी का मास और उसका एक्सीलरेशन, ये मोशन की कंडीशन है बेटा। ठीक है क्या बेटा? ये मोशन की कंडीशन है, समझ पाए? यहाँ पे आपका जो आपका जो बोलते हैं हिंदी में वस्तु है, ठीक, वस्तु क्या है? गति कर रही है। यहाँ पे स्थिर अवस्था की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गतिमान अवस्था की बात हो रही है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम ये बताता है कि बल क्या है? बल हमारा मास और एक्सीलरेशन का गुणनफल है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? एक फोर्स की डेफिनेशन मिल गई, फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल गया। अब मैथमेटिकल फॉर्मूले को समझेंगे कि ये बना कैसे। ठीक, यहाँ पे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन ऐसे होता है बेटा, ऐसे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या होगा? डी पी अपॉन डी टी। तो पी क्या है? संवेग, पी है संवेग, या इसको बोलते हैं मोमेंटम। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। dp अपॉन dt क्यों किया? यहाँ पे हम डेरिवेशन कर रहे हैं। संवेग का जब डेरिवेशन करेंगे, या इसका मोमेंटम का जब डेरिवेशन करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, व्हाट वी विल व्हाट वी विल रिसीव देन दैट p, आप सभी को पता होगा, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, संवेग क्या है? संवेग मास और वेलोसिटी है, मींस। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि u और v, ये समझेंगे कि why we have considered, why we have taken u and v। तो u क्या है? u है बेटा जब वस्तु स्थिर अवस्था में थी, और v क्या है? v है जब वस्तु गतिमान अवस्था में आई। तो उसका डिफरेंस यहाँ पे जब हमने निकाला, तब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक, टी हमारा नीचे का ही चल रहा है। तो एम वी, जो एम वी क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है वी, एंड यू क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है जब बॉडी रेस्ट में थी। तो अपॉन में टी चलेगा, यानी कि समय चलेगा। तब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? फिर से हम लिख सकते हैं बेटा कि एम वी, यहाँ से देखिए एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो हमने एक चीज और पढ़ रखी है, क्या? v अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए, यानी कि जब गति बटे समय होता है, तो वो क्या किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर होता है। यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, या ए इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ रखा है? v अपॉन टी। सो v अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। ठीक, वही हमने किया। हमने जब a रखा यहाँ पे, when we have replaced v upon t with a, so the formula is the so the formula we get what? F is equals to m into a. So we have I will repeatedly discuss that p is here mv
P is equals to mv, and A is the acceleration of the body attains. Okay, A is equals to v upon t. जब वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो वो एक्सीलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। F इज इक्वल्स टू एम ए, यही तो हमें चाहिए था, समझ पाए? तो ये डेरिवेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि हमें F इज इक्वल्स टू एम ए कैसे मिला। ठीक, समझ पाए? F इज इक्वल्स टू एम ए किस तरीके से मिला, किस तरीके से हमें प्राप्त हुआ, उसका पूरा डेरिवेशन है। ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म में। व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? सो थर्ड न्यूटन्स लॉ states that it is also called beta action reaction law, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको कहते हैं। When an external force acting on a body or applied on a body, then it exerts same force on body which is same in a magnitude but is opposite in direction। समझ पाए? जब हम किसी भी बॉडी पे बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का बल लगाती है या फोर्स लगाती है इन द अपोजिट डायरेक्शन। समझ पाए? ठीक, एग्जाम्पल क्या है? ऑन द बैंक्स बोट स्लाइटली पुश बैक व्हेन वी गेट आउट ऑफ इट। जब भी हम नदी किनारे पे होते हैं और नाव से बाहर निकलते हैं, तो किनारे पे पैर रखने पर बोट क्या करती है, थोड़ी हल्की पीछे होती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमने मैदान पर बल लगाया, तो उतने ही अमाउंट का बल हमारे दूसरे पैर ने बोट पर लगाया, इस वजह से बोट पीछे खिसकी। जब भी हम बंदूक से शूट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, गोली जो है वो बहुत ही रफ्तार में जाती है। अब वह रफ्तार क्या करती है, उतने ही अमाउंट का बल लगाती है किस पर, हमारे हाथ पर। ठीक, हमारा हाथ झंझना उठता है। सो देयर इज ए जर्क व्हेन वी आर शूटिंग, वी आर शूटिंग द shooting from the gun। ठीक, so there are many examples which is depending on Newton's third law of motion। It is also called action reaction law, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बेटा कि क्या न्यूटन का तृतीय नियम या तीसरा नियम किसी भी बॉडी पर जब हम लगाते हैं, तो एक बॉडी पर एक ही फोर्स लगता है या अलग अलग दो फोर्सेस लगते हैं? यहाँ पर दो अलग अलग फोर्सेस लगेंगे। समझ आया? दो अलग अलग फोर्सेस लगेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है। सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये फुटबॉल है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन फोर्स एंड एक्शन फोर्स। यहाँ पे हम
अगर एक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे उतने ही अमाउंट में, उतने ही मैग्नीट्यूड में रिएक्शन भी लगेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप जितनी जितनी ताकत से किसी भी दीवार में पुश करते हैं या मान लीजिए पंच करते हैं, तो उस कंडीशन में उतनी ही ज्यादा चोट लगती है हमें। समझ पाए? जितनी ही ज्यादा गति में, या दूसरा एग्जाम्पल और समझ सकते हैं कि जितनी ही ज्यादा तेज अगर हम बॉल को बैट से बीट करते हैं, उस कंडीशन में बॉल उतनी ही दूर जाती है। ठीक, सो देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, सोच के तो देखिए। ठीक, सो ऑल दीज मोशंस लॉ is applicable on the dynamics। ओके, सो यहाँ पे समरी है, आप देखिए कि पहले लॉ में हमने पढ़ा था, इन द फर्स्ट न्यूटन्स लॉ वी हैव स्टेटेड दैट what is law of inertia, it is also called law of inertia। okay, it is applying on moving object keep moving। ठीक, यही तो हमने पढ़ा था अभी कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्टे रेस्ट में है, ठीक, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अनलेस एक्टेड ऑन बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स समझ गए कि एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रही आ रही है यहाँ। ठीक, in the second law we have stated, we have expressed that what is force, force is equals to the product of mass and acceleration। ठीक, so the more force means more acceleration। यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन था। ठीक, m इंटू ए था, तो यहाँ पे अगर हम एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे या फोर्स बढ़ाएंगे उतनी ही दूर, उतनी ही एक्सीलरेट करेगी, मींस उतना ही ज़्यादा तेज कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी। ठीक, सिंपल शब्दों में बोलें, मोर मास मींस लेस एक्सीलरेशन। अगर ज़्यादा वजनीली कोई चीज़ होगी, ज़्यादा वजन में होगी, भारी होगी, तो वो कम मूव करेगी। ठीक, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट इफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक, एक्शन रिएक्शन लॉ क्या बोलते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वो वस्तु भी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। यहाँ पे देखिए ऑन द फर्स्ट, तो यहाँ पे बॉडीज अलग अलग होंगी, फोर्स अलग अलग है तो बॉडीज भी अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जब न्यूटन का तृतीय नियम होता है, तृतीय नियम का परिघटना होती है, तो वहां पे आपकी एक बॉडी होती है, एक एक वस्तु पर बल दोनों बल लग सकते हैं, या एक अलग अलग वस्तु पे दोनों बल लगते हैं। ठीक, एक बॉडी ही होती है, फोर्स दो होते हैं, या दो अलग अलग बॉडी होती हैं, तो दो अलग अलग बॉडी यहाँ पे होंगी। ठीक, तो यहाँ पे एक बारी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज, वी हैव स्टडीड अबाउट फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल, एक खिंचाव है, एक तनाव है जो किसी भी बॉडी की मोशन में मदद करता है, गति में मदद करता है, और उसकी डायरेक्शन को, उसके शेप को, उसके साइज को या उसकी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, अनबैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्स क्या करता है
किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी मीन्स किसी भी वस्तु की गति करने में सहायक होता है। और जहाँ पे हमारे फोर्सेस इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड, देयर विल बी द ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट। समझ आया? इनर्शिया क्या है या जड़त्व क्या है? जड़त्व एक ऐसी परिघटना है जो वस्तु के वस्तु के मीन्स स्टेट में स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। ये तीन तरीके से होते हैं बेटे: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. So we have studied that uh, inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Direction, inertia of direction is generally applied on round curve or banking tracks. ठीक। Laws of motion क्या है? Laws of motion are generally applied on the moving object. ठीक। These are given by Isaac Newton in 1699 in his book Mathematica Principia. You can watch this book. So all those students who have absent today, who are absent and they are not coming regularly, will also join class daily. ठीक? We have studied Newton's second law. Newton's second law gives us the definition of force. ठीक? Force is equals to mass into acceleration. And in the first case, we have discussed the inertia. Law of inertia is also called the Newton's first law. ठीक? Newton's third law is also called reaction and action and reaction law. क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहते हैं। होप कि सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, सही से समझ आया होगा। तब तक थैंक यू। ओके, we will meet again in the next lecture. Till then, be happy and stay educated. Jai Hind.